Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 205 Unit 19 Foreign Trade and Balance of Payment. In this we'll discuss first Trade Policy Analysis Tool. So for a proper analysis of a country's foreign trade, it can be done by analyzing first volume of trade. So what is volume of trade? What do you mean by volume? It refers to the size or the magnitude of international trade कि कितना size का हो रहा है. Since large number of capital goods and services enter international transactions and their aggregate can be measured by finding their monetary value. Thus volume of trade can be measured in terms of money value or in terms of monetary value. Now the second is share of export or imports in GDP. तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी इकॉनमी कितनी ओपन है, दैट इज़ ओपननेस ऑफ द इकॉनमी टू ट्रेड. इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ ट्रेड स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड इन अ कंट्री. And the ratio of exports to GDP is known as APE, that is average propensity to export, and the ratio between imports and GDP is called average propensity to import. Now the share of exports imports in the world trade, ये GDP में था. जो हम रेशियो निकालते हैं एक्सपोर्ट्स का GDP से या फिर इम्पोर्ट्स का GDP से, तब उसे APE और API रिस्पेक्टिवली बोलते हैं. बट अब अगर शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स अगर वर्ल्ड ट्रेड में बताएं तो ये बताता है कितना इंपॉर्टेंट है एक कंट्री एज अ नेशन इन द होल इकॉनमी, कितना इंपॉर्टेंट है एक कंट्री. तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट सिग्निफाई करता है. इट रिफ्लेक्ट्स मार्केट ट्रस्ट दैट अ कंट्री इज एबल टू रिलाइज इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटर्स इन द वर्ल्ड मार्केट. Changes in this ratio indicate shift in position of comparative advantage of a country. चेंज होती रहती है पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन कंपैरेटिव एडवांटेज, कितना कॉम्पिटिटिव वो भी है. फोर्थ इज डिग्री ऑफ openness. So most natural mean measure of a country's integration is the world trade. In the world trade is degree of openness, कि कितना कंट्री का ओपननेस है इन द सेंस में कि कितनी कंट्री ओपन है टू ट्रेड. सो let xi, mi and yi be the countries. xi है total imports, mi है total imports and yi है GDP. तो xi हो गया exports, yi GDP and mi imports. So countries openness ratio is defined as OI, which defines openness, is equals to xi, that is exports, plus mi, that is total imports, divided by yi, that is GDP. Higher the openness ratio, that is more open is the country or the economy. Fifth is composition of GDP. ये बताता है स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है. एज इन स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रही है तो अभी वो थोड़ी डेवलपिंग स्टेज में. अगर वो कंप्लीट या फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट कर रही हैं दैट मीन्स ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है. सिक्स्थ इज सेक्टोरल एंड जोग्राफिकल ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेड. सो sectoral composition of countries trade is a matter of for a variety of reasons. For instance, it may matter for growth if some sectors are drivers for technological improvement, this leads to economic growth. Also, constraint to growth may be more easily identified at sectoral level. तो हमें पता लग जाता है कि सेक्टोरल और जोग्राफिकल ओरिएंटेशन से कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. एंड सिमिलरली जोग्राफिकल भी कि कौन से एरिया से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है. Geographical composition highlights linkage to dynamic regions to the world and helps to think about the export promotion strategy. फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि वैसे वहाँ से एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट करना है. नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. इट इज़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मे बी कंपेयर टू चेंज इन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स. तो इट इज़ चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स. The relationship between the two variables is known as term of trade, that is terms at which exports can exchange for imports. तो वैल्यू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चेंज इन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स. अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है in comparison to imports, that is if the value exports and value terms of imports value shows an increase, तो TOT को favorable बोलते हैं. मीन्स फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स द कंट्री कैन इंक्रीज इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट वो अभी पहले सपोजिटली वो 100 कर रही थी, ठीक है, और इम्पोर्ट भी 100 करी थी, बट अब 100 एक्सपोर्ट करने के बाद वो 110 इम्पोर्ट कर पा रही है, तो ये फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड है. तो TOT आर द रिलेटिव प्राइस ऑन वर्ल्ड मार्केट ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट टू इट्स इम्पोर्ट. इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट राइजेज रिलेटिव टू इम्पोर्ट द कंट्री इम्प्रूव्स इट्स परचेजिंग पावर ऑन वर्ल्ड मार्केट. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. ये बताता है कि स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है.
जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है उसका ट्रेड डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है, उसे न्यू आउटलेट्स देखने पड़ते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स। उसकी होराइजन ऑफ चॉइस इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स भी बढ़ती है, सॉरी माय बैड। क्योंकि उनके पास ज़्यादा इनकम होती है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट्स भी करते हैं। कंट्री बिगिंस ट्रेडिंग विद एन इंक्रीजिंगली लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, क्योंकि डेवलप हो जाती है तो ज़्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाते हैं। थैंक यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल for more videos on MSc 205 and other subjects. Thank you.